मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। मेरा जो प्रीवियस लेक्चर जो था क्लास मेरा जो प्रीवियस लेक्चर था वो मैंने एक्सेल रिकॉर्डर में किया था, जिसमें हमने केवल पार्टनरशिप फर्म के बारे में बेसिक कंसेप्ट क्लास मैंने सिखाया था और ये मेरा नेक्स्ट है। आज जो स्टार्ट करने वाले हैं ये रहेगा हमारा पार्टनरशिप का, जहाँ से हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, आज का टॉपिक थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की जो क्लास है ये बेस्ड है हमारे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के ऊपर, हाउ वी कैन स्टार्ट अवर अकाउंटिंग वर्क। बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि मैंने एक्सेल रिकॉर्डर में किया हुआ है, आपको भेज दिया है। मेरे 2 वीडियोस ऑलरेडी मैं भेज चुका हूँ। क्लास इस पर हम थोड़ा ध्यान देते हैं। ओके, रिगार्डिंग पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड क्या है? पार्टनरशिप डीड या पार्टनरशिप डीड क्या है? When there is a written agreement, अगर पार्टनर्स के बीच में 2 है, more than 2, आज की डेट में एज ऑन डेट there are maximum 50 partners can be the owner of the partnership firm. Partnership deed with when there is a written agreement, and when they maintain their accounts they have to follow whatever written in the partnership deed. And also we have learned that there are, in some cases there may be some disputes. What type of disputes? Sometimes they forget something on some topics, sometimes they forget or they just forget to discuss on few topics, and when the time comes there may be disputes. Then how they will solve their disputes? If there is a deed, then there is no problem, they will follow the deed. But if there is no deed, then how they will solve their disputes? So we are going to discuss today's topic. Class, here we are studying partnership deed, partnership forms. In the partnership form we are discussing accounts in the absence of partner deed. How, if there is no deed, or if there is deed but deed is silent on 5 things, then how they will solve their disputes? First is sharing of P&L, that means profit and loss. If deed is silent मतलब means they have forget to write anything about how they will going to share profit and loss. Then if the deed is silent or nothing is written regarding sharing of profit and loss, then partners will distribute equally. Suppose there are 2 partners, they earn 5,000 rupees, then they will get 2,500 and 2,500 both equally. If there are 3 partners, firm earn rupees 9,000, then one partner get 3,000, 3,000, 3,000, 9,000 profit to be distributed among 3 partners equally. Now class, next is interest on capital. If there is deed, if there is partnership deed, then partners will get interest on their capitals, but in the absence, nothing interest will get to the partners. Third, interest on drawing. If in partnership deed drawings there is discussion on the interest on drawing, whatever interest is given they will get interest on drawing. But in the absence, how much they will get? Nothing they will get. No interest will be given. Then next point, 4th point, interest on loan and advances. If any partners given loan to the firm, then in the absence, but they just forget, then 6% per annum. Then they will get 6% per annum as an interest. Then they will get 6% per annum as an interest on loans. Then class,
next fifth point, and this is the last point, remuneration of salary to a partner. If there is a deed, they will get salary according to the deed. But if nothing is told about, if nothing is discussion on the salary or remuneration, remuneration is salary. If nothing is given about salary, then no, nothing will get salary to any partners. So class, this is a very important topic, and many times board will ask questions on this basic concept. So you have to learn it, and also you have to write it on your copies. Now, my next topic is meaning of P&L appropriation account, or you can say profit and loss appropriation account. We are going to discuss. So first of all, let's discuss what is this type of account. What type of account it is? Profit and loss appropriation account. So class, profit and loss appropriation account means, first of all, let's learn about its term. Profit and loss account, the account in which we can identify profit or loss, which you have discussed in class 11th. आपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, एंड बैलेंस शीट बनाई, ये वही क्लास 11 का ट्रेडिंग अकाउंट है भाई. नाउ एप्रोप्रिएशन वर्ड इज एडेड. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एप्रोप्रिएशन? एप्रोप्रिएशन मींस डिस्ट्रीब्यूशन. सो इन दिस, so we can say this P&L appropriation account means how owners, because we prepare trading P&L balance sheet account for the owners. So in the same way, P&L appropriation account are maintained by the partnership firm, that they maintained by the owners, that how they will going to distribute profit. वो प्रॉफिट को किस प्रकार आपस में बांटेंगे. क्लियर? सो दिस इज फॉर दैट P&L appropriation account is maintained by the owners, or you can say for the owners. प्रॉफिट एक एग्जांपल है. सपोज P&L अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, बनाया गया, जिसमें 10,000 नेट प्रॉफिट आया. तो नेट प्रॉफिट जो है वो पूरे फर्म का है, पूरे फर्म का प्रॉफिट है 10,000. अब उस 10,000 में से पार्टनर्स ने कितना लिया वो हमने लेवल पर नहीं पढ़ा भाई. हमने पढ़ा है उसको कैपिटल में ऐड कर दिया, बट वो पूरा पैसा कैपिटल में ऐड कर देंगे तो फिर ओनर्स को क्या मिलेगा? समझ है? ओनर्स को तो अब कैसे मिलेगा? ओनर को भी तो जिंदा रहना है, तो उसको भी तो पैसा चाहिए. सो उसके बाद क्या होता है, दिस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड कि भाई 10,000 में से अगर वो एज्यूम करते हैं इतना हम कैपिटल में फर्दर इन्वेस्ट करेंगे, तो जो पैसा जितना वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उस पैसे को यहाँ लेके आप यहाँ इस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. सो इन शॉर्ट we can say profit and appropriation account is maintained to appropriate the profits, appropriate मतलब बांटना among partners. पार्टनर्स उस नेट प्रॉफिट को किस प्रकार आपस में बांटेंगे, किस प्रकार वो आपस में एक दूसरे को पैसा बांटेंगे, उसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है. दिस इज बेनिफिशियल फॉर द पार्टनर्स. ये पार्टनर का खुद का है, ये फर्म के लिए नहीं बनाएगी, ओनर के लिए एक्चुअली बन रही है. क्लियर? सो अब हम जब ये टॉपिक पढ़ते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जो क्या है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है या लॉस डिस्ट्रीब्यूट करना है. तो प्रॉफिट एंड लॉस कहाँ से मिलेगा हमें? P&L अकाउंट. कहाँ से मिलेगा हमें? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. कौन सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है? We have learned in class 11. It is prepared after trading account. ये वही P&L अकाउंट है. क्लियर? अब P&L अकाउंट में जब आगे क्वेश्चंस करेंगे तो इन फ्यू क्वेश्चंस यू विल फाइंड दैट somewhere management commission is given, somewhere rent is given, somewhere interest on loan taken by from the partner, it is given. So these three terms are concerned with or connected with the P&L account. So suppose in question we have to prepare P&L appropriation account. In question we have to prepare P&L account. हमें ये अकाउंट बनाना है.
लेकिन हमें ये भी जानकारी दे दें तो क्वेश्चन में नहीं भी कहा जाए फिर भी हमें P&L अकाउंट बनाना है, इन चीज़ों को उसमें शो करना है। इसके बाद जो प्रॉफिट आएगा वो यहाँ ट्रांसफर किया जाएगा। क्लियर? सो मैनेजर कमीशन हमने पढ़ा है P&L अकाउंट में। मैनेजर कमीशन हम लास्ट में लिखते थे, नेट प्रॉफिट पे चार्ज करते थे। बिफोर एंड आफ्टर आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए उसको। बिफोर में इनटू रेट और आफ्टर में इनटू रेट, नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100%। रेंट हमने पढ़ा रेंट है, तो ये जो रेंट है तो ये P&L अकाउंट में ही आता था, हमें याद है अच्छे से। इंटरेस्ट और लोन्स हमने पढ़ा था वहाँ पे। लोन अगर भाई फर्म ने लोन लिया है, लोन किसने लिया? फर्म ने, पार्टनर फर्म ने लोन लिया तो पे कौन करेगा? पार्टनरशिप फर्म पे करेगी। तो अगर पार्टनरशिप फर्म पे करेगी तो P&L अकाउंट में आएगा। जैसे ये पार्टनर का ही ओनर का अकाउंट है, यार सिर्फ ओनर के अकाउंट में वो नहीं, वो ये प्रकार से लॉस है, ये लॉस ये बियर नहीं करेंगे, ओनर्स बियर नहीं करेंगे इसको, क्योंकि ओनर अलग है और फर्म अलग चल रही है। भाई पेमेंट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्म की है, ना कि ओनर्स की। और ये अकाउंट ओनर्स के लिए बनाया जाता है कि प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें। सो क्लास सो दे इज अ लिटिल बिट डिफरेंस। ओके, इन एग्जाम्स ओनली P&L एप्लीकेशन अकाउंट बनाने के लिए पूछा जाएगा, ये कभी नहीं पूछा जाएगा P&L अकाउंट भी साथ में बनाएंगे। बट ये आपके दिमाग की वो है कि हमें बनाना है नहीं बनाना है। क्लियर? आगे इन नेक्स्ट हमें आगे आएंगे कि क्वेश्चन आएंगे, हम जब इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तब ये वाला पॉइंट आपके लिए क्लियर हो जाएगा। द नेक्स्ट है अब हाउ इट कैन बी प्रिपेयर्ड। सो देयर इज अ परफॉर्मर, एक परफॉर्मर ऑफ P&L एप्लीकेशन अकाउंट। एक परफॉर्मर भी बनाया P&L अकाउंट का, वो किस प्रकार से बनाया जाएगा? सिंपल से डेबिट क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर साइड में अगर इस टाइप से दिया जाता है तो आप समझ जाएगा इट इज अ फॉर्मेट ऑफ लेजर। ये लेजर का फॉर्मेट है। बस लेजर में क्या आता है? डेट आता है। यहाँ पे डेट नहीं है, क्यों? बिकॉज एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज मेंटेन आफ्टर P&L अकाउंट। P&L अकाउंट बनने के बाद तो प्रॉफिट मिलेगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कब बनता है? एट द एंड ऑफ द ईयर, 31 मार्च को। सो इसीलिए यहाँ पे उन्होंने डेट नहीं बनाया। क्लियर? वो चाहे तो क्या ले सकते हैं? P&L अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2000। तो जिससे क्लियर हो जाएगा कि किस डेट को बना हुआ है। अगर जिस डेट को बना हुआ है तो यहाँ पे से डेट कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है। क्लियर? सो दे आर डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड, तो यू कैन से इट इज अ टाइप ऑफ लेजर। सो क्लास अब हम हमारे इस अकाउंट में आ जाते हैं। ये ऑर्डर एप्लीकेशन अकाउंट क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट कहाँ आया था? P&L अकाउंट में। आप याद करेंगे क्लास 11 का, नेट प्रॉफिट किस जगह आया है? इट कम्स इन द डेबिट साइड। डेबिट में आता है नेट प्रॉफिट, और हमें उसको उठा के दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो वो अब इस अकाउंट में हम पैसा निकाल रहे हैं, तो डेबिट में जाओ तो पोस्टिंग होगी क्रेडिट में, और क्रेडिट में क्या करते हैं? बाय। कौन से अकाउंट से लेके आ रहे हैं? P&L अकाउंट से लेके आ रहे हैं बैलेंस। कौन सा बैलेंस है भाई? वो हमारा प्रॉफिट। तो पहले प्रॉफिट को लेके आ गए। क्लियर? अब यहाँ हम केवल पार्टनर से रिलेटेड चीजें ही यहाँ आएंगी, बाकी चीजें नहीं आएंगी। अब पार्टनर्स, समटाइम्स पार्टनर्स ने कुछ पैसा विड्रॉ किए, देन ही विल गिव द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। वो भी ये पार्टनर से रिलेटेड है, बिकॉज ड्राइंग मींस अमाउंट विड्रॉन बाय द ओनर। तो पार्टनर से रिलेटेड है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो पैसा मिलेगा। क्रेडिट क्यों है? भाई पैसा मिल रहा है यहाँ पर उसको, और यू कैन से इट इज इनकम। फिर यहाँ पे पैसा तो पैसा मिल रहा है, इनकम है तो क्रेडिट साइड में बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अब यहाँ पे मैंने लिख के रखा है नोट लेट देयर आर टू पार्टनर एक्स एंड वाई। तो भाई यहाँ पे एक्स का पैसा आ गया, यहाँ वाई का पैसा आ गया, दोनों को ऐड करेंगे हम यहाँ पे लेंगे, तो इतना पैसा जमा हो चुका है। डेबिट में क्या आएगा? एक्सपेंसेस। ये सिंपल रूल है, डेबिट वाला एक्सपेंसेस। इन पैसों को निकाला जाता है बाहर। अब ओनर को पैसा मिल रहा है, इसमें से प्रॉफिट में से,
और ड्राइंग का पैसा मिल गया टोटल जो हमें बांटना है आपस में। अब उन लोगों को क्या क्या मिलता है? फर्स्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये हमें पता है क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है ओनर्स को बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सपोज देयर आर टू पार्टनर्स एक्स एंड वाई, एक्स को भी मिल गया, वाई को भी मिल गया, ये हमने लिख दिया। अब पार्टनर्स को इंटरेस्ट मिल गया उनके कैपिटल में। और नेक्स्ट देखते हैं ये सैलरी, पार्टनर्स से रिलेटेड पार्टनर को क्या मिलेगा? पार्टनर को मिलेगा सैलरी या रेमुनरेशन। सैलरी समटाइम्स जरूरी नहीं कि सब पार्टनर को मिले, सैलरी मिलती है अकॉर्डिंग टू द वर्क असाइन टू देम, सम ऑफ देम हायर सैलरी, सम ऑफ देम लेस सैलरी, इट्स डिपेंड अपॉन द वर्क which are assigned. So sometimes some of the partners they do not do any work, so they will not get any salary. So suppose कर लेते हैं, suppose X is getting X या indeed में लिखा है कि जो X को सैलरी दी जाएगी because X is performing extra task. तो suppose सैलरी केवल X को मिली है तो हमने सैलरी दे दिया। और क्या मिल सकता है ओनर्स को? समटाइम्स कमीशन मिल सकता है, समटाइम्स सेल्स पे कुछ ज़्यादा उसने सेल किया, कुछ कमीशन मिल रहा है ओनर को, तो बाय कमीशंस गिवन टू पार्टनर। भाई एक्स्ट्रा को मिल सकता है, किसी पार्टनर को मिल सकता है, जो भी होगा वहाँ पे नाम लेके आप मेंशन कर देंगे, एक्स को मिल रहा है, वाई को मिल रहा है, दोनों को मिल रहा है, आप इस प्रकार से कमीशन को देते हो। और क्या मिल सकता है? रिजर्व्स। वे रिजर्व क्या है? अमाउंट असाइड फ्रॉम द ओनर्स, ये पैसा ओनर्स को मिलना चाहिए था, कभी वो पैसा रिजर्व में रख देते हैं, क्योंकि जो रिजर्व क्रिएट किया जाता है फ्रॉम द ओनर्स प्रॉफिट, वो ओनर के मुनाफे में से रखा जाता है। तभी तो जब कभी पार्टनरशिप फॉर्म बंद होती है, क्लोज होती है, तो उसका पैसा वापस ओनर को ही मिल जाता है। क्लियर? सो रिजर्व्स मींस अमाउंट असाइड फ्रॉम द प्रॉफिट। तो ये रिजर्व किसी को नहीं मिलेगा, तो पार्टनरशिप फॉर्म या एडमिशन होगा, रिटायरमेंट होगा, डेथ होगा, तब ये पैसा रिजर्व आपस में बांट लिया जाता है। लेकिन फिलहाल उसको बाहर रख दिया जाता है कि भविष्य में कभी भी अनफॉर्चुनेट चीज़ें हो सकती है तो काम पड़े। या गया इतना ही फिलहाल आपके सिलेबस में है। इसके बाद क्या होगा, पहले हम देखेंगे हमारे इनकम्स यानी क्रेडिट ग्रेटर ज़्यादा है, हमारे एक्सपेंसेस कम है।